پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں تقوی پر، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا کو جینے کا جو مقصد ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ پر جو ہے، اللہ کی ذات پر جو ہے اپنے تقوی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہے ہمارے ناظرین کو سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ ناظرین، ہمارا مقصد جو ہے، ہم مختلف موضوعات اس لیے ناظرین کے سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ناظرین جو ہے انہیں پتہ چل سکے کہ تقویٰ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، افطار کرانے کا کیا ثواب ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں، تاکہ ہمارے جو چینل کا جو مقصد ہے دین کی بات پھیلانے کا، وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم نے صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نے بھی، ایک اللہ کے بندے نے بھی ہماری کسی بات پر بھی عمل کر لیا تو ہمارے جو پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ختم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ اور ہمیں جو ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا، ہمارا آخرت میں جو ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ تقوی کے مقاصد بیان کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ تو سب سے بڑا تقوی کا مقصد تو کامیابی ہے، بے شک اللہ رب العزت کے دربار میں کامیاب ہونا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حکم کے مطابق چلنے کے لیے۔ جب بندے اس پر چلیں گے اور رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی ان کے لیے رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو زندگی ہے وہ کامیاب زندگی، رب تعالیٰ کے تقوی کے مطابق گزری ہوئی زندگی رب کو پسند آئے گی۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس تقوی کی ساری زندگی پریکٹیکلی جو ایک صورت وہ بتائی۔ ایک تو یہ کہ زبان سے بتانا، بے شک کہ اپنے عمل سے بتانا، بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پریکٹیکلی ہمیں بتایا کہ جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں وہ احکام کوئی مشکل نہیں ہے، وہ احکام ایسے نہیں جن پر انسان عمل نہ کرے۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں کہ کتاب میں پڑھیں بڑی اچھی لگیں، لیکن جب ہم پریکٹیکلی اس کو زندگی میں لائیں تو وہ بڑی مشکل ہوں، ان پر عمل نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ساری دنیا کے سامنے عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جب سورہ بقرہ شروع ہوتی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک بے شک، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت پانے کے بعد بندہ متقی بنے یہ اور معاملہ ہے، اور بندہ متقی بنے ہدایت پانے کے لیے یہ اور معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید فرمایا کر کہ جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک ایک چیز یہ ہے کہ جب بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے، اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ متقی ہو تو اس کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو متقی بننے کا اور تقوی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ اب متقی کو جو پرہیزگار ہے، جس کی قرآن نے آگے صفتیں بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزوں پر ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے متقی ہیں تو ان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ بے شک ان کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے کہ وہ جن اعمال پر ہیں ان اعمال میں اخلاص ان کے ہو اور ان اعمال میں وہ
रियाकारी दिखलावा ना रखें और उन पर कायम रहें, इस्तिकामत उनकी रहे। ऐसा ना हो कि वो इन आमाल की वजह से अपने सारे आमाल को ज़ाया करने का जो सबब है यानी रियाकारी, या कोई ऐसा अमल कर बैठें कि उनके सारा जो किया हुआ वो रायगाह हो जाए, ज़ाया हो जाए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद मुत्तकीन को हिदायत देता है। तो मुत्तकीन तकवा ये हिदायत हासिल करने का ज़रिया है। कुरान मजीद हिदायत देता है किसको? मुत्तकीन को। हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए है। तो अब ये तकवा का मकसद क्या है? कुरान से हिदायत लेना। बेशक। अब जो तकवा इख्तियार ही ना करेगा तो कुरान उसको हिदायत नहीं देगा। उसको कुरान फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान किन को हिदायत नहीं देता? बहुत से लोग हैं जिनको हिदायत देता है, बहुत से लोग जिनको गुमराह कर देता है। इस कुरान की वजह से वो गुमराह हो जाते हैं इसको पढ़कर। लेकिन गुमराह कौन होते हैं? किनको ये गुमराह करता है? जो फासिक हैं, जो तकवा इख्तियार नहीं करते, बगैर तकवे के वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में माज़अल्लाह अपनी तरफ से वो सोच विचार ऐसी करते हैं जो उनको गुमराही की तरफ ले जाती है। तो कुरान मजीद से हिदायत पाना ये तकवे का एक मकसद है। दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, फलाह पाना, और फिर हिदायत सबसे बड़ी जो चीज़ है कि बंदा कुरान से हिदायत का माना क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए, मैं कुरान खोलूँ तो कुरान मुझे बताएगा कि वो कहाँ पर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान हिदायत देता क्या कि कुरान में हर चीज़ का बयान है, कुरान में हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन कोई उसको पढ़ने वाला हो, कोई उससे हिदायत लेने वाला हो, तो हिदायत कैसे मिलेगी? वो तकवा से मिलेगी। तो तकवे के मकासद में से एक बड़ा मकसद वो कुरान से हिदायत लेना है। एक पहला फलाह पाना, और फिर उसके बाद कुरान का जो हिदायत का इतना बड़ा समंदर है इल्म का, उसमें से हिदायत को समेटना, हिदायत के मोती चुनना, ये मकसद है तकवे का। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जो तकवे के बाकायदा सहाबा किराम की सूरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, दीगर सहाबा किराम, उनकी सूरत में पूरा तकवे का हमारे सामने एक निसाब मौजूद है। हम जिसको भी देखें वो तकवे के ऊपर पूरे अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करने वाले और अपनी ज़िंदगी तकवे के मुताबिक गुजारने वाले हैं। उन्होंने तकवा इस अंदाज में इख्तियार किया और लोगों को ये समझाया कि रब ताला ने जो ज़िंदगी दी है, चाहे बंदा किसी मनसब पर भी हो, तकवा वहाँ पर बंदे के लिए ज़रूरी है। और तकवे का जो मकसद है कि बंदा रब ताला के हुक्म पर चलते हुए अपने आप को नुकसान से बचाए, तो वो तकवा बंदे को, चाहे वो एक छोटा सा मजदूर हो या रेडी लगाने वाला हो या वो किसी सल्तनत का बादशाह हो, हर बंदे के लिए ये तकवा ज़रूरी है। और इस तकवे की वजह से वो अपने ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सुरखरू हो सकता है। अगर तकवे का दामन वो छोड़ देगा और परहेज़गारी को वो छोड़ देगा, अपने आप को नुकसान से बचाने की जो उसके अंदर जुस्तजू है और जो अल्लाह ताला ने हुक्म उसको दिया है उसको वो तर्क कर देगा, तो फिर वो चाहे आम रेडी लगाने वाला हो या वो कोई भी बड़े से बड़े मनसब पे बैठा हुआ शख्स हो, उसको वहाँ पर गुनाह करते हुए शर्म महसूस नहीं होगी। और वो तकवे को अपने सामने जब नहीं रखेगा तो फिर वो नुकसान कर बैठेगा और वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके या जिस जगह पर बैठा है, दुकान पर बैठा है, वहाँ पर वो कम नाप तोल के किसी भी तरह से वो अगर तकवे को तर्क करेगा तो वो नुकसान करके अपनी फलाह और कामयाबी से दूर हो जाएगा, तकवे के मकसद से दूर हो जाएगा। तो तकवे के रब ताला ने जो मकासद बयान किए उनमें सबसे बड़ा मकसद वो कामयाबी हासिल करना है। और वो कामयाबी किस तरह हासिल होगी कि हम अपने रब ताला के बताए हुए रास्ते पर चलें। और रब ताला ने जिन चीज़ों का हमारे लिए
हुक्म दिया उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें, और चाहे कोई हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, हम हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर चले। ये तकवा है कि तकवे में हमने डरना किससे है? रब ताला से डरना है। रब ताला हर जगह पर मौजूद है, हर किसी को देख रहा है, बंदे के सारे अमाल लिखे जा रहे हैं। तो फिर बंदा रब ताला के खौफ से वो गुनाह से दूर रहे, गुनाह को अपने करीब ना आने दे। ये तकवे का मकसद है, ये तकवे की असल बुनियाद और इसका फलसफा है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार फरमाया, फत्तकूनी या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालो मुझसे डरो, तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहम अगर बंदा चाहता है, रब मुझ पे रहम करे, रब मुझ पे करम करे, फजल करे, तो फिर भी वो तकवा इख्तियार करे। अगर वो तकवे की बजाय दूसरे ज़राए इख्तियार करेगा और वो ये कहेगा कि मैं दुनिया के जो हलाल हराम को देखे बगैर माल इकट्ठा करना शुरू कर दूं, तो वो अल्लाह की तरफ से रहम और रब की तरफ से करम वो नहीं होगा। रब ताला फरमाता है, अगर तुम रहम और रब का करम चाहते हो तो फिर तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करोगे तो जो तुम कमाओगे रब उसमें ही बरकत अता फरमा देगा, और जो रब ने तुम्हें रिज़्क देना है वो तो मिलना है, हर हाल में मिलना है। तो क्यों ना तुम तकवे के ज़रिया से इसको हासिल करो, रब के डर और खौफ के ज़रिया से, रब ताला के हुक्म के मुताबिक जो जायज़ तरीका है, हलाल तरीका है रिज़्क कमाने का, उसके ज़रिए से कमाओ। तो ये रब ताला की तरफ से तुम्हारे लिए कितना करम का बायस, रहम का बायस होगा। रब खुद फरमा रहा है कि अगर तुम्हें रहम चाहिए, करम चाहिए, रब ताला का फजल चाहिए, तो फिर तुम तकवा इख्तियार कर लो। तो तकवे के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि बंदा रब का रहम हासिल करने के लिए, रब का करम और फजल हासिल करने के लिए तकवा इख्तियार करे। ये तीन मकासद जो तकवे के हमने बयान किए, इसके अलावा बहुत सारे कुरान और हदीस में बयान हुए हैं, इख्तिसार के साथ इन तीन को बयान किया जाता है। जी बिल्कुल नाजरीन, तकवा जो है ये हमारा एक अहम हिस्सा है, ज़िंदगी का में है अहम हिस्सा होना चाहिए। असल में बात ये है कि हम दुनियादारी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं, दुनियादारी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। दीन से दूरी इख्तियार करने की वजह से आज हमारा हाल ये है कि हम जितने भी, अगर जितना भी रिज़्क कमा रहे हैं, हमारी रिज़्क में बरकत नहीं है। बरकत क्यों नहीं है? कि हमें अल्लाह की ज़ात पर तकवा नहीं है। जो लोग तकवा रखते थे, जो लोग जो है अल्लाह पर यकीन रखते थे, वो सुबह खाना खा लेते थे तो दोपहर का फिक्र नहीं करते थे, वो शाम का फिक्र नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ ये होता था कि अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर तकवा है हमें। उनका तकवा, उनका जो ईमान मजबूत था। वो कहते थे अल्लाह की ज़ात जो है भूखा उठाती जरूर है, बंदा जो है भूख से जागता जरूर है, लेकिन इंसान को भूखा सुलाती नहीं है, क्योंकि उनका अल्लाह की ज़ात पर तकवा था। आज हमारा हाल क्या है? हम सोचते हैं जी हम एक साल भर की जो है जमा पूंजी इकट्ठी कर लें, हम साल भर के गंदम इकट्ठी कर लें, हम साल भर के लिए ये चीज भी ले ले, ये चीज भी जमा कर ले, ये भी जमा कर ले, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर हमें तकवा नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है, जिस ज़ात ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, जिस ज़ात की बरकत, जिस ज़ात की शान से हमारी सांसें चल रही हैं, तो वो हमारी खुराक का भी बंदोबस्त करेगा, वो हमारे रिज़्क का भी बंदोबस्त करेगा। जिस ज़ात ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, वो ज़ात हमें हर चीज मुहैया करेगी। हमने ये सोचना बंद कर दिया है। हमने ये नहीं कभी सोचा कि हमारी जिंदगी पता नहीं कितनी है, हमने अगला सांस लेना है या नहीं लेना, हमने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, हमने जोहर की पढ़ी है या नहीं पढ़ी, असर की पढ़ी है या नहीं पढ़ी। हमने ये कभी नहीं सोचा। हमारी जो तवज्जो है, वो जो पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो दुनिया में मसरूफ है। दुनिया में हम जो है अपनी तवज्जो लेकर बैठे हुए हैं, जो हमारी नाकामी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के पास, तो आपने देखा कि उनके पास खजूरों का ढेर है। वो दौर के जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुर्बत के आलम में और गुलामी के, और जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को शौकत शान अता की और मदीना मुनव्वरा में सल्तनत इस्लाम की कायम हुई, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के पास खजूरों का ढेर देखा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो
حضرت بلال سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ڈھیر میں نے اپنے آنے والے وقت کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال اسے خرچ کر دو، عرش کا رب تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ جی۔ ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیار نبی ہوں، پوچھئے